देखो भाई, ये है हमने ना ट्रिंगल्स। भाग रहे घोड़ा ट्रिंगल का मतलब पता है ना क्या होता है? घोड़े जिसमें 3 एंगल हों। 3 क्या इसमें एंगल? ठीक है, हमारे पास ये रहा, जैसे भाई एंगल ये रहा, ठीक है, एक ये, ठीक है। 3 साइड्स क्या हो इसमें? 3 साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 साइड्स हो गई, ठीक है। इसमें क्या है? एक साइड ए बी है, ठीक है। दूसरी साइड क्या है? इसमें बी सी है। तीसरी साइड इसमें बी सी सी बी हाँ सी बी है, सी ए, ठीक है ना। ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, सी, ठीक है। तो ये बताया था जैसे अभी मैंने, ये तो 3 वर्टिसेस भी हैं इसमें, ठीक है, वो ए बी सी हैं। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स भी, कॉन्ग्रेंस क्या होता है? इनका सब कुछ बराबर हो, ठीक है, सब कुछ इनका बराबर, साइड के साइड इक्वल हो, ठीक है। 2 ट्रायंगल है मान लो, जैसे जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल, एक और देखो सुनो अब, हमारे पास ये त्रिभुज हमें 2 होगा, ट्रायंगल्स ए बी सी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? पी क्यू और होगा, मान लो इस तरह से है। तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड, ये दूसरी साइड है ना, इसके इक्वल होनी चाहिए। तीसरी साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ये पहला एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा इक्वल होना चाहिए, तीसरा इक्वल, ठीक है। फिर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। You must have observed that 2 copies of your photographs of the same size are identical. Similarly, 2 bangles of same size, 2 ATM cards issued by the same bank are identical, ठीक है। You may recall that on placing a 1 rupee coin on another minted in the same year, they cover each other completely. Do you remember what such figures are called? Indeed, they are called congruent. Congruent means equal in all respects or figures whose shapes and sizes are both the same, ठीक है। Now the 2 circles of the same radius and placement another, what do you observe? They cover each other completely and we call them congruent circles, ठीक है। Repeat this activity by placing one square on the other by sides of the same measure. ये स्क्वायर है, दोनों सेम है ना ये, तो बस हम इसके ऊपर रख देंगे उठा के, तो फिर ये सेम हो जाएगा, ठीक है। और by placing 2 equilateral triangles of equal sides on each other, you will observe that the squares are congruent to each other and so are the equilateral triangles, ठीक है। You may wonder why we are studying congruence. You all must have seen the ice tray in your refrigerator. Observe that the molds for making ice are all congruent. क्या? आइस की होती है ना फ्रीज में, सभी का कॉन्ग्रुएंट इक्वली होता है। अच्छी बात है। The cast used for molding in the tray also has congruent depressions. Maybe all are rectangular or all circular or all triangular. So whatever identical objects have to be produced, the concept of congruence is used in making the cast. Sometimes you may find it difficult to replace the refill of your pen by a new one, and this is so when the new refill is not of the same size as the one you want to remove. ठीक है, रिफिल अगर सेम होंगी तो ही बदलेंगे ना हम, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होती है। You can find numerous examples where congruence of object is applied in daily life.
situations. हम्म, Can you think of some more examples of congruent figures? चलो एक आध और बताओ. Now, which of the following figures are not congruent to the square in figure 7.3? First, सही है, कॉन्ग्रेंट नहीं है ना, ये अलग अलग है. सब डिफरेंट जा रहे हैं. एक ये मुझे लगता है अलग, ये सेम है. ये और फर्स्ट और लास्ट वाला. ठीक है. The large square in figure 7.3 and third are obviously not congruent to the one in figure 7.3, but the square figure 7.3 fourth is congruent the one given in figure. हाँ, first और fourth congruent. ठीक है. Let us now discuss the congruence of two triangles. You already know that two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and the angles of the other triangle. हाँ ये पढ़ लियो अपन लिखना. Which of the triangles in the given below are congruent to triangle ABC in ये the figure? देखो ये हमारे पास ही ए बी सी फिर, ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी. मुझे बताना है कि कौन सा इनके कॉन्ग्रुएंट है भाई इसके. थोड़ा देखो इसको. ये है congruent सेकंड वाला. कैसे? देखो इसकी 4.5 है ना एक. हाँ, एक 4.5 है, एक और- 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, एक ऊपर 5 सेंटीमीटर. देखो एक बार फिर ध्यान से देखो. इसको अगर हम पलटेंगे तो सही आ जाएगी ना ये. ठीक है. कौन है? हाँ ये कॉन्ग्रुएंट लगता है. और ये अगला ये भी कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है. और ये अगला और ये भी कॉन्ग्रुएंट है. ये भी है भाई. और ये नहीं है, सारे 5 है ना इसके. ठीक है. तीनों साइड डिफरेंट है. ठीक है. मैं आज मेरे संस्कृत के ऊपर बनाती हूँ. संस्कृत के चैप्टर. हम्म. Cut out each of the triangles from figure 7.4, second to fifth, the turn then around and trying to cover a triangle ABC. Observe the triangle in figure 7.4, second, third and fourth are congruent to be a triangle ABC, while triangle TSU of figure 7.3 is not ठीक है. congruent ठीक to ठीक है. ठीक. वेरी गुड. तुम्हें आ गया ना समझ ये. हाँ. ठीक है. वो थोड़ा और पढ़ते हैं हम, ये पेज और पढ़ेंगे. If a triangle PQR is congruent to triangle ABC, we write triangle PQR is equal to triangle ABC. देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है. किसका साइन है ये? कॉन्ग्रुएंट. ये साइन कैसा है? इक्वल टू के ऊपर एक ऐसा लगा है. ठीक है. Notice this when triangle PQR is equal to ये कॉन्ग्रुएंट टू. when triangle PQR congruent to triangle ABC, then side of triangle PQR fall on corresponding equal sides of triangle ABC, and so is the case of the angle. That is, PQ covers AB, QR covers BC, and RP covers CA. Angle P and covers angle A, angle Q covers angle B, and angle R covers angle C. Also, there is one corresponding between the vertices. That is, P corresponds to A, A to QB, R to C, and so on, which is right as written as P A corresponds to. क्या है? corresponds to A, corresponds to B. B are corresponding to C. Notice this, under this corresponding triangle PQR congruent to a triangle ABC, but it will not be correct to write triangle QRP congruent to triangle ABC. ठीक है. ठीक है. क्या करना हमने? ये पी क्यू आर लिखना है. क्या लिखना है? पी क्यू आर. इसको बदल नहीं सकते. ठीक है. इसको हम क्रम को बदल सकते. सेम रहेगा ये. ठीक है. तो इसको ध्यान रखना. मैं ऐसे करेंगे. थोड़ा और पढ़ो. चलो एक बार. हालांकि वैसे तो फिर ये पुराना ही है. ठीक है. हमारा क्या है ये? एक बार आप इसको थोड़ा और देखेंगे भाई. यहाँ पढ़ो. बताता हूँ बाद में. यहाँ पढ़ो एक बार. गिव द correspondence between the triangle in figure 7.1 fourth and triangle चलो ये हम अभी इसको correspondence देंगे. ठीक है. ऊपर वाले फिगर में. So it is necessary to write the corresponding of vertices correctly for writing of congruence of triangles in symbolic form. Notice this, in congruent triangles corresponding parts are equal, and we
Write in short CPCT इसमें क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स corresponding parts of ऑफ congruent कॉन्ग्रुएंट triangle. ट्रायंगल, ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा। ठीक है, अब एक बार हम इसको देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं। देखो ये फर्स्ट अब मैंने इसका लिखना है कि कौन सा किसके इक्वल है। ठीक है, एक बार देखो, पहले लिखना है ट्रायंगल ABC भी, ट्रायंगल AB, ये तो होगा क्लियर। ठीक है, ABC किस कॉन्ग्रुएंट होगा मुझे बताओ एक बार। ये हो जाएगा P, नहीं एक मिनट रुको, A कितना है, A 4, चलो PQR हो गया, PQ, QR ठीक है। और ये तो चलो होगा PQR। अगला है कौन सा है, ये ट्रायंगल ABC ABC कॉन्ग्रुएंट टू, इस अगले में बताओ, ये इसमें होगा ना, इसमें बताओ अगले में। EFD EFD थोड़ी होगा इसमें यार, पहले पहले क्या है, F है, पहले क्या है F, फिर D, फिर E, ठीक है, FDE, ठीक है। DE हम चेक करें, देखो हमारे पास AB कितनी है, हमारे पास AB 5 है, कितनी है 5, तो FD चेक करो, FD कितनी है, FD 5 है ना, इसमें DE 5 है, FD 4.5 है, तो ये भी 4.5 हो गया। मतलब देखो दोबारा देख करते हैं, BC है ना हमारे पास, BC 5 AB 4.5 है ना हमारे पास, AB कितनी है 4.5, तो FD कितनी है 4.5, ये ठीक है, तो ये सही है फिर हमारा। उसके बाद ये देखो, अब हमने भी कर लिया, BC देखो, BC कितनी है हमारे पास 5 है ना, तो ये DE D कितनी है, ये भी 5 पे लगी, ये रही ना DE D 5, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये भी सही, मतलब सही होगा, ठीक है हमारा। और तीसरी फिर अपना सामी हम हो गए, 2 से हो गए, लास्ट तीसरी साइड मिल गई। ठीक, और देखते हैं, चलो एक बार रुको, एक और देखते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका क्रम बताओ मुझे फटाफट, क्या बनेगा इसका। इसका ए बी कितना 4.5 है, तो ये भी 4.5, तो M और ये नीचे क्या है, M और ये नीचे क्या है, P, P, M और P, नहीं मुझे तो क्या लिखे हम यहाँ पे, ABC तो लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा NMP, MPN क्या है, MP ट्रायंगल MP, चलो तुम कर लोगे बाकी, ठीक कर लेना इसका। देखो हम ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल A है ना इसमें, इसका ट्रायंगल यहाँ पे M है, ठीक है। B का कौन सा है, डबल P है, क्या है P है, और C का N होगा, ठीक है। चलो ये कर लोगे तुम बाकी।